Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is AGRO-5321. So today we will dealing with the remaining part of management of crops in under rainfed areas. Okay, so as you can see, and in our previous lecture we had seen in land preparation and choice of crops and cultivars and crop substitutions, then efficient cropping system and the potential cropping system in dry land agriculture. Okay, so in this lecture we'll discuss the few another management practices under rainfed areas. Likewise, some early sowing of crop in the seasons, planting patterns and plant densities, which is very important management practices in rainfed areas, because the plant population and the crop canopy is a very important element for for managing soil and moisture conservation, soil and water conservation techniques. So which is very important to know what is the crop canopy, what is the plant density or plant population under rainfed areas. Okay, so which type of plant population or which type of crop canopy are found in rainfed area, so we have to know this now. So this is very important management practices. And another one is the managing soil crust problem. So basically जो ब्लैक सॉइल होता है इन रेनफेड एरिया में, वहाँ पे हार्ड पैन बन जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के जो रिक्रिमिनेशन है, हमारे जो भी अमेंडमेंट तरीके हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हम रेनफेड एरिया में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. देन द नेक्स्ट इज मिनिमाइज एवेपोरेशन लॉसेस. ठीक है, सो एवेपोरेशन लॉसेस को यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्निक्स, लाइक वाइज मल्चिंग जो होती हैं, अलग अलग मल्चिंग होती है. मल्चिंग की टाइप्स होती है लाइक पॉलीथीन मल्चिंग, वर्टिकल मल्चिंग, दैन स्टबल मल्चिंग. तो अलग अलग टाइप की मल्चिंग प्रोसेस जो है वो हम क्या करते हैं, अपनाते हैं रेनफेड एरिया में. ठीक है, सो वी टेक फोर्थ वन विच इज़ द अर्ली सोइंग ऑफ क्रॉप इन द सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when rainfall is comes or withdraw early time, before the time we would say. So we have to do for मतलब हमें ऐसी चीज़ें करनी है जो सम सोइंग प्रैक्टिसेस जो है वो हमें अर्ली सोइंग करनी. अब अर्ली सोइंग ऐसा भी नहीं है कि हम उसे उसके सोइंग टाइम से पहले ही सोइंग कर दे. राइट, सोइंग टाइम पे हमें प्रॉपर सोइंग करनी. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मिड 15 जून पे हमें सोइंग करनी है तो मिड 15 जून से 16 जून तक हमें सोइंग कर देना है क्रॉप का. ठीक है, तो हमें लेट नहीं करना होता है क्रॉप की सोइंग के लिए, क्योंकि जो मॉनसून है वो ऑलरेडी पहले विड्रॉ हो गया है, पहले आ चुका है. ठीक है, सो अगर हम लेट करेंगे तो मॉइस्चर जो है वो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, या जो वाटर का लॉस हो जाएगा ड्यू टू द अनदर फैक्टर्स लाइक रन ऑफ हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा. ठीक है, या फिर वाटर हम कह सकते हैं कि जल भराव जैसी स्थिति हो जाएगी अगर ज़्यादा बारिश हो गई और हमने टाइम पे सोइंग नहीं किया तो. ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो हो जाती है. सो वी कैन से इट इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट fact that early sowing along contributes to around 63% of the final crop yield. ठीक है, so early sowing leads to optimum yield due to efficient use of growth resources besides minimizing the incidence of pests and diseases. ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि अगर हम लेट से सोइंग करते हैं तो बहुत से पेस्ट और डिसीजेस का अटैक हो जाता है प्लांट पे. ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्रॉप प्लांट होता है लेट सोन की वजह से उस मौसम के लिए या उस सीज़न के लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता. राइट, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज planting pattern and plant densities. Okay, so planting pattern and plant density, we would say the crop geometry refers to the arrangement of plant population which is intra and inter row spacing in the field, choosing the optimum plant population and width of row spacing continues to be one of the most difficult challenges for dry land farmers. Okay, so arrangement, plant population अरेंज करना या डेंसिटी अरेंज करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें एक निश्चित दूरी में, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस में हमें मेंटेन करना होता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन भी हम नहीं ले सकते या बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में भी हम नहीं ले सकते. तो हमें एक सुटेबल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. जो क्या होता है
रो स्पेसिंग करना, ठीक है, रो मेंटेन करना, ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑप्टिमम यील्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट को क्या होता है, प्रॉपर एरेशन मिलता है, प्रॉपर स्पेस मिलता है, ठीक है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस करना ड्राई लैंड फार्मर के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टिंग होता है, ठीक है, आपको प्रॉपर रो बनाने पड़ेंगे, फरो बनाने पड़ेंगे, लेबर लगेंगे आपको प्लांटेशन करने के लिए या फिर सोइंग करने के लिए, राइट। तो ये सारे जो प्लांट डेंसिटीज़ को मेंटेन करने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं इन ड्राई लैंड रीजन। देन एट टू डेंसिटीज क्रॉप yields are reduced because too much of soil water is used to vegetative growth early in the season. Very lake density do not effectively exploit available moisture. सो ये सारे जैसे मैंने बताया मॉइस्चर को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या हम सबको पता है कि अगर हम डेंस पॉपुलेशन वाले प्लांट्स लगा देते तो प्रॉपरली वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि एरेशन या प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता रूट को और वेजिटेटिवली जो पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस हैं इन, बट इन रेनफेड एरिया ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमको बहुत ही ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं वी वुड से। ओके, द नेक्स्ट इज द मैनेजिंग सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम्स। सो सॉइल क्रस्ट आर ड्राई थिन एंड हार्ड सॉइल surface layer that develop due to the action of raindrop or irrigation water on subsequent drying. It is result in the development of continuous layer of closely packaged soil particles. So management practices to overcome crust problem include that in our next slide. ओके, सो मैनेजिंग सॉइल क्रस्ट की जो प्रॉब्लम्स है, बेसिकली जो रेनफेड एरिया में जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है उसमें हार्ड पैन बन जाते हैं, ठीक है, और जो हमारी रेड सॉइल होती है अलग अलग एरिया में वहाँ पे क्या होता है, सॉइल क्रस्ट बन जाते हैं, या सॉल्टेशन या अलग से सॉल्ट के पैन हो जाते हैं, मतलब सॉल्ट का हम क्या कह सकते हैं, एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है हमारी सॉइल का वो कम हो जाता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट कम होना मतलब क्या होता है, वाटर लॉस हो जाना, या तो वाटर रन ऑफ के जरिए लॉस हो जाएगा, या तो जो मॉइस्चर अवेलेबल है हमारे सॉइल में वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल क्रस्ट के प्रॉब्लम को हमेशा मैनेज करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन आप कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, वेजिटेटिवली बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं। ओके, so moving on the next slide, which is the there are some practices like shallow and dense sowing हमें करनी होती है, ठीक है। then the dragging heavy thorny branches on crusted soil surface, ठीक है। then loosening the crust surface by using spike tooth हैरो, ठीक है, काटेलीदार जो हैरो हम यूज़ करते हैं वो उससे हम सॉइल क्रस्ट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसे प्लांट उगाना है जो एक मतलब काफ़ी सारे ब्रांचेस हों और जो सॉइल क्रस्ट बनने ना दे, ठीक है। एंड देन हमें या तो बहुत ही मतलब शैलो रूटेड क्रॉप उगाना है प्रॉपरली, ठीक है, जो सॉइल को क्या करे, हार्ड पैन बनने मत हो, जो भी बनने मत दे, जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले, राइट। दैन द लाइट ब्लेड हैरो 2 to 3 days आफ्टर रेन, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, प्लांटिंग ऑन शैलो फॉरोज एंड वन साइड ऑफ रिज, ठीक है। रिज एंड फलो दोनों में हमको प्लांटेशन करना पड़ता है ताकि किसी भी एक चैनल पे या तो रिज पे या फरो पे क्रस्ट ना बन पाए, ठीक है। तो क्रस्ट बनने का सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा वाटर का इनफिल्ट्रेशन रेट जो कि ऑलरेडी हमारे रेनफेड एरिया में लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है वो क्या होता है, ऑलरेडी लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। तो हमें हमेशा सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम को मैनेज करना होता है, राइट, इन रेनफेड एरिया इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वी वुड से। Okay, and the next is minimizing evaporation losses. There are 3 principles for to minimize the evaporation losses or to control the evaporation losses. Okay, so first is decreasing and turbulent transfer of water vapor to the atmosphere by growing plant, raising wind breaks, straw mulches etc, ठीक है। ये evaporation losses को हमें ऐसे plants उगाने जो succulent टाइप के हो, ठीक है, और जो मतलब हमें इस तरीके का मल्च, स्ट्रॉ मल्च या अलग अलग टाइप के प्लास्टिक मल्च, वर्टिकल मल्चिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं हम फॉर द मिनिमाइजिंग एवेपोरेशन लॉसेस हम कर सकते हैं, राइट।
Then the next is decreasing capillary conductivity by rapid drying of the surface soil layer, which is decreasing the capillary flow and moisture holding capacity of the surface soil layer. ठीक है, सो कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल लेयर की वो डिक्रीज होती है ड्यू टू द इवेपोरेशन लॉसेस, हम कह सकते हैं कैपिलरी कंडक्टिविटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनफिल्ट्रेशन को मेंटेन करना, पर सीपेज को कम करना, ताकि जो हमारा प्लांट का रूट जोन है वहाँ पे प्रॉपर जो है मॉइस्चर अवेलेबल हो, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दे आर सम मैनेजमेंट ऑफ रेनफेड एरियाज। ठीक है, जो जिसमें हम अर्ली सोइंग करते हैं बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, और मिनिमाइज करते हैं, एंड द सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम्स को हम रोकते हैं। ठीक है, तो ये लैंड प्रेपरेशन करते हैं प्रॉपरली। चॉइस ऑफ क्रॉप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और मैनेजमेंट फैक्टर्स ऑफ इन आर रेनफेड एरियाज। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा रेनफेड एरिया में प्रिकॉशन करने की टेक्निक्स हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, इन सब के जरिए हम क्या होते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सॉइल वाटर हार्वेस्टिंग भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल को आपको कैसे रिक्लेमेंट करना है, ये आप सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारे जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।